Hello students, welcome to Sairam classes English 1 to 3. Today we are again here with a new poem of class 12th. The name of the poem is A Thing of Beauty, written by John Keats. John Keats. He was born in London in the year 1795 and died in Rome in 1821 at the young age of 25 due to illness. He is a romantic poet and his poetry is characterized by sensual imagery in his most popular work, which is a series of odes, a lyrical poem which is meant for a particular subject. Today, his poems are one of the most sought after creations in English literature. The above given poetry is an excerpt from his poem Endymion, a poetic romance written in 1818 and considered to be an epic poem. First of all, we will discuss some new words from the poem. Bower. Bower means a pleasant shady place under trees or climbing plants. हिंदी में एक वर्ड होता है इसके लिए कुंज. उसमें एक जैसे कि बहुत सारी शेड ट्री जब जा रहे हो ट्रीज जहाँ पर होते हैं तो उनसे जो एक शेड बन जाती है. दैट इज कॉल्ड बोअर. मोरो. मोरो मीन्स the following day. Wreathing means covering or to encircle, मतलब कि एक तरह से कवर कर लेना. Morrow is used for morning also. Spite, desire to offend or annoy someone. एक तरह से कि आप कह सकते हो कि जैसे बहुत ज़्यादा किसी से द्वेष होना या गुस्सा होना, नाराज़गी होना या किसी को हम गुस्सा करने के लिए की इच्छा करना. डिस्पॉन्डेंस. डिसहार्टेंड. होपलेस. होपलेस मतलब किसी का एक तरह से दिल तोड़ देना या फिर निराशा पैदा कर देना. नोबल. ऑफ सुपीरियर क्वालिटी और हैविंग हाई मोरल प्रिंसिपल्स. पॉल. अ क्लाउड. हियर अ डार्क क्लाउड ऑफ ग्लूम एंड सैडनेस. मतलब ये जो पॉल यूज़ किया गया है ये एक तरह से ऐसा जैसे एक डार्क क्लाउड का सैडनेस वाला कोई क्लाउड है जिसे एक तरह सैडनेस को जो भर दे, ऐसा एक आवरण जिसे आप कवरिंग जिसे आप कह सकते हैं. स्पिरिट्स. द सोल वेयर लाई आवर इमोशंस एंड कैरेक्टर. स्प्राउटिंग. डेवलपिंग या टू डेवलप सडनली इन लार्ज नंबर. शेडी. बून. A shade which is helpful to someone. एक ऐसा शेड, ऐसी छाया which is helpful for someone. Rills. Stream of running waters. यानी छोटी छोटी नदी टाइप आप कह सकते हो या जैसे धाराएं होती है छोटी छोटी. They are called rills. Covered. Not openly known or displayed. पूरी तरह से आप जैसे कि एक तरह से कि shelter of bushes. Covered मतलब shelter of bushes. या फिर एक ऐसा एरिया विच इज़ नॉट ओपनली नोन और डिस्प्लेड. ग्रैंड्यूअर. सो एज टू इम्प्रेस. ग्रैंड मतलब शानदार या फिर किसी को जो हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने के लिए यूज़ किए करते हैं. इन इंग्लिश यू कैन यूज़ रिच वर्ड ऑल्सो. डूम्स. लास्ट डे ऑफ एग्जिस्टेंस मतलब तबाही वाला दिन या फिर बर्बादी वाला दिन. इमोर्टल. लिविंग फॉर एवर. ऐसी चीज़ें विच विल नॉट डिस्ट्रॉय और विच विल नेवर डाई. हेवन्स. ब्रिंग द डोर ऑफ गॉड्स होम मतलब कि जैसे स्वर्ग का किनारा आप कह सकते हैं. हेवन्स ब्रिंग मतलब कि स्वर्ग का किनारा या फिर ऐसी जगह जहाँ पर बिल्कुल भगवान के आप बिल्कुल पास पहुँच जाते हैं. Yes, now we will start our poem, stanza number 1. A thing of beauty is a joy forever. In this paragraph, the poet is talking about the
permanent nature of beautiful things. And he is telling us that they give us eternal joy. Eternal means never lasting joy. And its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dream and health and quiet breathing. Here he is saying that the uh, beauty stays forever. It never fades away. Rather, it increases with the passing time. It means जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे ब्यूटी भी बढ़ती है. The perception of the poet regarding beauty is that it never goes off with the passing time. यहाँ पे जो है पोएट हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो ब्यूटी होती है वो टाइम के साथ जाती नहीं है, बल्कि टाइम के साथ वो बढ़ती है. रादर इट ब्यूटीफाई मोर एंड मोर. और ये जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे उस चीज़ को टाइम होता है, वैसे वैसे वो और ब्यूटीफाई होती, और सुंदर होती चली जाती है. फॉर द पोएट ब्यूटी इज़ लाइक अ ब्यूटीफुल शेडी ट्री अंडर whose shade all the creatures can sleep peacefully and enjoy good health. Here the poet is saying कि जो beauty है, according to the poet, beauty is like a beautiful shady tree. एक बहुत बड़ा सा tree है, shady tree है, and in that shade, in the shade of that tree or under the shade of that tree, the any creature, they can sleep peacefully and enjoy good health, and they can take their स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम. जो भी सपने आएंगे वहाँ पर अच्छे सपने आएंगे. एंड अ साउंड स्लीप रिजल्ट इन हेल्थ ऑफ अवर बॉडी एंड माइंड. और जितनी अच्छी और गहरी नींद हम लेंगे उतना ही हमारी बॉडी और जो माइंड है, जो हमारी बॉडी है, जो हमारी हेल्थ है, वो सब उतना ही अच्छा उन पर रिजल्ट आएगा. एज इट प्रोवाइड अस ट्रैंक्विलिटी एंड मेंटल पीस. और इस तरह से हमें नेचुरली एक हेल्थ प्रोवाइड कराती है और हमें मेंटल पीस देती है, मानसिक शांति देती है. स्टैंजा 2. Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us on the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. Here the poet says that every day it is the beauty which fills us with the spirit to live. And it means that when we, as in the first stanza we have talked about a sound sleep, and after that he is saying that when we wake up to the next morning from that sleep, from that sound sleep, all the beautiful memories of our sweet dreams help us to strengthen our bond with earth. किस तरह से क्या होगा, जब हमें वो साउंड स्लीप मिलेगी और हम जब नेक्स्ट मॉर्निंग जागेंगे तो हमें अच्छी मेमोरीज रहेंगी अपने ड्रीम्स की, और इस तरह से हमारा अर्थ के साथ जो एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी. एंड दैट इज़ वाई द पोएट फील्स दैट एवरी मॉर्निंग वी प्रिपेयर अ रैथ ऑफ फ्लावर्स. रैथ ऑफ फ्लावर्स मतलब एक तरह से हम बैंड बनाते हैं, दैट बाइंड अस टू अर्थ मोर स्ट्रांगली. और उस बैंड के साथ, उन चीज़ों के साथ, उस इमोशंस के साथ हम अपने आप को और ज़्यादा अर्थ से जोड़ते हैं. इट इज़ द ब्यूटी विच बिल्ड द डिज़ायर इन अस टू लीव थ्रू देयर आर सैड मोमेंट्स एंड क्रूअल पीपल अराउंड अस. सो हियर द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट विदाउट ब्यूटी द अर्थ विल बी full of cruel people, sad and gloomy moments. It is the beauty which is created by God which help us to remove the sadness from our hearts. और ये कहता है कि if जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो नहीं होंगी
तो होपलेसनेस, सैडनेस होगी, और जो लैक ऑफ नोबल वेज है वो हमारे हिस्से हमारे ज़िंदगी का, हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन जाएंगे। एंड लाइफ इज़ फुल ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, और हमारी लाइफ जो है कठिन परीक्षाओं से भरी होगी। हम विश्वास खो देंगे एंड वी विल बी डिसअपॉइंटेड, कहीं ना कहीं हम डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे, विच रिजल्ट फ्रॉम आवर ऑन डूइंग। और ये सब चीज़ें किसके कारण होंगी? हमारे ही परिणाम होंगी। मतलब एक तरह से क्रूएल चीज़ें, सैड चीज़ें और ग्लूमी मोमेंट्स आ जाएंगे सारे, और उससे हमारी जो लाइफ है वो सब कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो जाएगी। वी हार्म अवर सेल्फ बाय फॉलोइंग अनहेल्दी एंड वीकेड पाथ्स, और हम अपने आप को ही हार्म करेंगे सारी अनहेल्दी और वीकेड चीज़ों को अपना करके। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज, some wonderful sights of nature help us to shade sad and grim thoughts. They remove the veil of gloom, bringing about hope and optimism in our lives. और यहाँ पे क्या कहना चाहता है वो कि कुछ अच्छी चीज़ें जो हैं वो हमें हेल्प करेंगी, हमारे थॉट्स को अच्छा बनाएंगी, हमारी सैडनेस को हटाएंगी, और जितना भी ये घूंघट है, जितना भी वेल है, कर्टेल है, जितना भी ग्लूम का, और उन सब चीज़ों को हटाएगी, सैडनेस को हटाएगी, और हमारे अंदर एक होप और ऑप्टिमिज्म को हमारी लाइफ में ले करके आएगी। Stanza 3. Such the sun, the moon, trees, old and young, sprouting a shady boon, for simple sheep, and such are daffodils. With the green word they live in, and clear reels that for themselves a cooling covert make, against the hot season the mid-forest break. Here, the poet describes the beautiful things which are present on the earth. In this way, he is giving us a list of these beautiful objects. And what are these beautiful objects? These are sun, the moon, old and young trees, which provide shade to sheep, daffodils, greenery surrounding them, and cool and clear streams, which provide respite in the heat of summer, and the bushes growing in the forest with musk roses blooming amidst them, all are eternal source of joys and pleasure. Here he is saying that जितने भी trees हैं, they are providing us their shade, flowers with their beauty, and rivers are giving us coolness during the hot summer season. During the heat of summer, they are giving us relief, and the bushes growing in the forest, they are giving us roses, खुशबू दे रही हैं, अच्छे अच्छे फ्लावर्स दे रही हैं, and all these are the eternal source of joys for us. Please, they give us pleasures to us, and all of these are the beauties of nature which are like a boon for us. और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक वरदान की तरह साबित हो रही हैं। Stanza 4. Rich with a sprinkling of fair musk, rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. All lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink, pouring unto us from the heavens brink. Here the poet adds on further to his list. अब वो यहाँ पर अपनी लिस्ट को जो है he is carrying on with the description of the more beautiful thing present on earth. और उसकी लिस्ट बढ़ गई है, such as the beautiful musk roses which have such a nice fragrance, जो कि बहुत अच्छी सी खुशबू दे रहे हैं. Then he described the tale of mighty warriors. Mighty warriors मतलब जो people वहाँ पर dead हुए हैं अब, एंड फॉर देयर कंट्रीज और फॉर द ह्यूमैनिटी, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को ह्यूमैनिटी के लिए या अपनी कंट्री के लिए कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस किया है. एंड ही सेज दैट ऑल दीज ब्यूटिफुल थिंग्स आर द गिफ्ट फ्रॉम गॉड फॉर ऑल ऑफ अस.
एंड ये जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए भगवान का एक वरदान है, भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है. दैट एंड ही वॉज कंटिन्यूइंग ऑन से दैट ऑल दीज लवली टेल्स, जितने भी स्टोरीज हैं that we have heard can also be placed among such thing of beauty. उन स्टोरीज को जो भी हमने सुनी है उन स्टोरीज को भी हम ब्यूटीफुल चीज़ों में रख सकते हैं, as they have a sublime effect on the human spirit. All beautiful things like an endless fountain from the heaven. और वो कैसे हैं, एक एंडलेस फाउंटेन की तरह, ऐसा फाउंटेन है जो हेवन से आ रहा है, जो कि कभी भी एंड नहीं होने वाला है. एक ऐसा फाउंटेन है विच इज़ गिविंग नेक्टर, एंड दैट नेक्टर इज़ गिवन बाय गॉड टू अस. मतलब भगवान ने एक तरह से जो आप कह सकते हो कि वहाँ ये फाउंटेन जो है सीधा स्वर्ग से आ रहा है, भगवान के थ्रू आ रहा है. और इस फाउंटेन, जैसे फाउंटेन से पानी आता तो इस फाउंटेन से हमें नेक्टर मिल रहा है, अमृत मिल रहा है. एंड दीज आर दोज ब्यूटीज विच आर इमोर्टल एंड गिव अस अ रीज़न टू लिव ऑन दिस अर्थ डिस्पाइट हैविंग सो मैनी सोरोज इन अवर लाइफ. और यही वो चीज़ें हैं जो, यही वो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं जो कि इमोर्टल हैं और हमें कहीं ना कहीं दे आर गिविंग अस इंस्पिरेशन टू लिव ऑन दिस अर्थ. जो भी और हालांकि अर्थ पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सॉरोज़ हैं हमारी ज़िंदगी में, बहुत सारे दुख हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन उन दुखों के बीच में कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं जो कि हमें इंस्पायर करती हैं जीने की लाइफ के लिए. एंड दीज आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी विच आर डिस्क्राइब्ड इन द पोम. एंड ये जो लिस्ट है यहाँ पर चीज़ों की, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम टाइम. मतलब बहुत ये चीज़ें जो हैं, जितना भी पोम में से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सब चीज़ कई बार ये चीज़ें पूछी जाती हैं. एंड मैनी टाइम द स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज बाय द लिस्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स. और क्वेश्चंस आते हैं, कई बार क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं सीखने. तो यू शुड ऑल नो अबाउट दीज थिंग्स. जो जो चीज़ें हैं, सन है, मून है, शेडी ट्रीज, beautiful daffodil flowers, streams of water, dense green bushes of forest, ferns where fragrant musk roses grow, tales of heroic man who sacrifice their leaves. ये सब चीज़ें जो है लिस्ट है ब्यूटीफुल चीज़ों की. एंड नाउ आई विल टेल यू अबाउट द लिस्ट ऑफ थिंग्स विच गिव अस sorrow. So these are the things that cause suffering and pain. Desire to offend others. जब हम गुस्सा करने की किसी को इच्छा रखते हैं. होपलेसनेस, लैक ऑफ नोबल मैन, बैड हेल्थ, अनहैप्पीनेस, ग्लूम, डार्कनेस, ऑल दीज थिंग्स आर कॉज सफरिंग एंड पेन इन ह्यूमन लाइफ. सो आई होप you have understood the poem very well. So please like and subscribe the channel for new update. And if you have any doubt, any query, then please drop in the comment section. Thank you. Stay home, stay safe.